Assalamu alaikum. This is Muhammad Yunus. Today we will discuss our lecture number 4, experimental technique in chemistry from chapter number 2, first year class. Today analytical chemistry from chapter number 2, basic techniques we will discuss. What is analytical chemistry? How different experimental techniques are applied in chemistry. Analytical chemistry is the science of chemical characterization. Science of chemical characterization of compound. A compound is completely analyzed in analytical chemistry. Complete analysis of a compound means qualitative and quantitative analysis. In analytical chemistry, we can analyze the compound from qualitative and quantitative analysis. First one, qualitative analysis. It is analysis qualitative analysis. In this analysis we can identify the components constituent present into the compound, like H2O. This is compound. Qualitative analysis means in water hydrogen element is there and oxygen is there. So this is identification of constituent, identification of elements present in compound. In analytical chemistry, first one is qualitative analysis and second one is quantitative analysis. In quantitative analysis, amount of each component is determined from compound. So when qualitative analysis is performed and amounts of each component they are determined, a complete analysis of compound is done. Complete quantitative or amount of each component means that these hydrogen atoms are present 2 gram and oxygen in this compound is 16 gram. So first one is qualitative analysis and second one is amounts of each component, 2 gram hydrogen in water, 16 gram oxygen in water. This is quantitative analysis. So a complete compound is analyzed from qualitative and quantitative analysis. Important points for complete quantitative analysis. 4 major points are there. When we determine quantitative analysis of a compound, 4 major steps are there. First one, we will collect sample of the substance, obtaining the sample. Major steps for quantitative analysis are sample collection, separation of the sample into its constituents, measurement and calculation, and fourth one is drawing conclusion. So these are 4 major steps while we will perform quantitative analysis of a compound. So in analytical chemistry, a compound is completely analyzed by these 4 points: sample collection, separation of the sample into constituents, calculation and measurement, and finally drawing the conclusion. So from this we can completely describe the analysis of a compound. So this is about analytical chemistry. What is analytical chemistry? This is compound analysis. It's chemical characterization of a substance, and completely substance is analyzed from these 2 analyses, qualitative and quantitative analysis. Let's move to our first separation technique, that is filtration, because in experimental technique chapter number 2
we will only discuss the separation techniques from which different samples are separated into constituents, and first one technique is filtration technique. Filtration is process of separation of insoluble particle from liquid. अब जैसे कि हम जानते हैं कि सैंपल मिक्सचर की बेस पे प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है जिसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल मिक्सचर में से अलग किए जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग किया जा सकता है, उसके लिए हम एक आम सिंपल फिल्टर पेपर मेथड जो है उसको यूज़ करते हैं। अब इसके अलावा अगर डिफरेंट टेक्निक को ऑब्जर्व किया जाए तो उनमें ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए, जैसे गूज क्रूसिबल है, इसी तरह सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल है, इसको भी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए अप्लाई किए जा सकते, क्योंकि ये डिपेंड करता है टेक्निक सेपरेशन की कि हम नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स या सैंपल की नोइयत नेचर क्या है, उस बेस पे हम प्रोसेस को भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फिल्ट्रेशन के लिए हम सिंपल, जैसे आप सिंपल अंडरस्टैंडिंग में सैंड एंड वाटर इसका एक मिक्सचर है, तो इसको हम जब सेपरेट करेंगे सैंड फ्रॉम वाटर, सिंपली हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे। इसको सैंपल को, मिक्सचर को इसमें से एक ऑपरेटर्स में से पास करेंगे तो सैंड और वाटर जो है वो कम्प्लीटली तौर पर सेपरेट हो जाएंगे। तो कोई भी जो सैंपल या मिक्सचर है वो उसकी टेक्निक बेस करती है उसकी नेचर पे, उसके मुताबिक जो है प्रोसेस अडॉप्ट किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में से अलग कर सकते हैं। जैसे अब सैंड और वाटर के मिक्सचर में सैंड इनसॉल्युबल पार्टिकल है, तो इसको जब हम इस प्रोसेस में से पास करेंगे तो सैंड जो है एज अ रेजिड्यू सेपरेट हो जाएगी और फिल्ट्रेट जो होगा वो बीकर में जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स जो हैं वो अलग अलग किए जा सकते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ filtration is separation of insoluble particles like sand from water, from the liquid, from the solution. अब प्रोसेस को अगर ऑब्जर्व किया जाए फिल्ट्रेशन को, तो स्टूडेंट्स इसमें दो कंपोनेंट प्रोसेस के बाद जो है वो ऑब्जर्व होते हैं, रेजिड्यू एंड फिल्ट्रेट। जब सैंपल को हम प्रोसेस में लाते हैं, मिक्सचर को इस ऑपरेटर्स में से, ऑपरेटर्स क्या है, ये एक सिंपल, ये एक स्टैंड है जिसमें हमने इसको फनल को एडजस्ट किया हुआ है, और ये एक रिसीविंग बीकर है जिसमें फिल्ट्रेट को जो है वो कलेक्ट किया जाता है, रिसीव किया जाता है। मिक्सचर या प्रोसेस को अगर इसका प्रोसीजर डिस्कस किया जाए तो इतना सिंपल प्रोसीजर इस तरह से बनता है कि मिक्सचर को इस कॉनिकल फ्लास्क जो है उसमें प्योर किया जाता है, जिसमें ऑलरेडी एक फ़िल्टर पेपर जो है उसको एडजस्ट करते हैं। नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट की बेस पे फ़िल्टर पेपर को इसके अंदर जो है वो एडजस्ट किया जाता है। तो सैंपल को प्योर करेंगे, सैंपल यहाँ से पास होगा, फिल्ट्रेट यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, जबकि जो रेजिड्यू होंगे वो फ़िल्टर पेपर में अबव इन कॉनिकल फ्लास्क जो है वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सैंपल इज़ प्योर्ड इनटू द कॉनिकल फ्लास्क एंड फिल्ट्रेट पास थ्रू इट, दैट इज़ इन रिसीविंग बीकर, एंड रेजिड्यू रिमेन इनटू द फिल्टर पेपर। तो एक सिंपल प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए हम फिल्ट्रेशन को जो है वो अब प्रोसेस में ला सकते हैं, इसमें सैंपल्स को उसके कंपोनेंट्स जो है ना उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें जो मेजर्स के तौर पर ले सकते हैं कि जब प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन परफॉर्म करना है तो उसमें अहम पॉइंट्स कौन से हैं जिसके लिए हम एक स्मूथ प्रोसेस जो है फिल्ट्रेशन का वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये जो इसमें फ़िल्टर पेपर हमने कॉनिकल फ्लास्क में एडजस्ट किया है, फ़िल्टर पेपर का जो एक पोर साइज़ होता है उसको देखना होता है, और वो डिपेंड करता है, मुख्तलिफ़ वैरायटीज़ के फ़िल्टर पेपर मिलते हैं, और देखना होता है कि हमने इनमें किस नेचर का फ़िल्टर पेपर लेना है। वो डिपेंड करता है कि फ़िल्ट्रेशन में जो मिक्सचर हम फ़िल्टर करने जा रहे हैं उसके साइज़ क्या हैं, उसकी नेचर क्या है। तो फ़िल्टर पेपर का साइज़ डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट के ऊपर। सबसे अहम पॉइंट ये है कि फ़िल्टर पेपर के डिफरेंट पोर साइड्स होते हैं, पोर साइज़ हैं, और उनकी बेस पे उसको एडजस्ट किया जाता है जो इसके अंदर हम फ़िल्टर पेपर को इमर्स करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि कॉनिकल फ्लास्क, इसमें जो फ़नल हमने यूज़ की है, फ़नल की ये जो रिम नज़र आ रहा है,
ये मैक्सिमम इसकी जो कह लें कि 1 to 2 सेंटीमीटर जो है इट शुड बी लार्ज इनफ फ्रॉम द प्रेसिपिटेट्स। फिल्टर पेपर जो हमने फनल के अंदर लिया है इसका तकरीबन हाफ या 1/4 पार्ट जो है ये रिम इससे लार्ज होना चाहिए। फिल्टर पेपर से 1 to 2 सेंटीमीटर जो है ये रिम का जो एरिया है ये लार्ज होना चाहिए, यानी इसमें फ़िल्टर पेपर पूरी तरह जो है वो इमर्स किया जा सके। जब सैंपल को इसमें से रन करेंगे, मिक्सर को इसमें ऐड करेंगे, तो वो इसमें ये कम्प्लीटली जो है ये फनल जो है ये फुल ना हो, तो फ़िल्टर पेपर से रिम का जो एरिया है वो 1 to 2 सेंटीमीटर लार्ज होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है जो मेयर्स में आता है, जो अहम पॉइंट है इस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के लिए, एक सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस को, कि जो रिम है, जो इसका स्टेम है फनल का, उसको इस बीकर की वॉल के साथ होना चाहिए। अगर तो ये वॉल से यानी इसको मिड में हम एडजस्ट करते हैं स्टैंड के ज़रिए, तो ये इसमें पॉसिबिलिटी है कि जब इसमें जो लिक्विड जो फिल्ट्रेट इसमें से पास होगा, जो इसमें कलेक्ट होगा रिसीविंग बीकर में, इसमें पॉसिबिलिटी है कि वो स्प्लैशिंग जो है वो प्रोड्यूस करें। तो टू अवॉइड फ्रॉम स्प्लैशिंग क्या किया जाता है, फनल को रिसीविंग बीकर की जो इसकी जो वॉल है इसके साथ एडजस्ट किया जाता है, सो दैट टू अवॉइड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ स्प्लैशिंग इन लिक्विड विच इज़ रिसीव इनटू द बीकर। तीसरा, इस वजह से इसको हम इस बीकर के साथ जो है वो एडजस्ट करते हैं। तो इस अंदाज से जो है वो जब प्रोसेस एक फ़िल्टर पेपर का मेथड यूज़ करना होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस का, तो उसमें जो फ़िल्टर पेपर है उसके साइज़ पे डिपेंड करते हैं। नंबर 2, जो कोनिकल फ्लास्क का जो एरिया है, रिम है, वो उसकी बात मैंने आपको बता दी कि इसको मैक्सिमम इसको लार्ज होना चाहिए। और नंबर 3, इसकी स्टेम जो है वो भी लार्ज होना चाहिए ताकि इसमें मुसलसल लिक्विड जो है इस पोर्शन में स्मूथली जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो मूव करता रहे, प्रोसेस जो है वो स्टॉप ना हो। तो ये एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है इसको हम सिंपल मेथड के ज़रिए जो है वो हम अलग कर सकते हैं कंपोनेंट्स को। इस नॉर्मल फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अलावा जो फिल्टर पेपर जो प्रोसेस ऑफ सेपरेशन है, इसको हम गूज क्रूसिबल ऑपरेटर्स के ज़रिए भी अलग कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड मेथड है गूज क्रूसिबल का, ये एक पोर्सलिन मेड ऑपरेटस है। Gauge crucible, it is made up of porcelain and samples which are more precipitated, they are separated from this apparatus, this gauge crucible। यानी जिन सैम्पल्स में प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी, जो हम एक आम फिल्टर पेपर से नहीं फ़िल्टर कर सकते, उसको हम इस गूज क्रूसिबल के ज़रिए जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं। अगर हम इसको एक आम फिल्टर पेपर पे यानी इस प्रोसेस से करते हैं तो वो सारे के सारे प्रेसिपिटेट यहाँ पे इस रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, इसमें से प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं करेंगे फिल्ट्रेट को, तो वो रिएक्शन स्टॉप हो सकता है। ऐसे सैंपल जो कि मोर प्रेसिपिटेट हैं उनको गूज क्रूसिबल के ज़रिए सेपरेट किया जा सकता है। इसके लिए करना क्या होता है, एक सक्शन अप्लाई की जाती है। ये इसमें फिल्ट्रेशन फ्लास्क है, यहाँ पे सक्शन लगी होगी, तो जो गूज क्रूसिबल है उसको इसके ऊपर जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। गूज क्रूसिबल को इस फ्लास्क के ऊपर एडजस्ट करते हैं, सैंपल यहाँ से इसमें ऐड किया जाता है। यहाँ से जब कंप्लीट सक्शन अप्लाई करेंगे तो फिल्ट्रेट इसमें जो है वो कलेक्ट हो जाता है, जबकि रेजिड्यू जो होंगे जो इसमें फ़िल्टर पेपर होता है वो उसके ऊपर जो है वो कलेक्ट कर लिया जाते हैं। तो पोर्सलिन जो है ये एक पोर्सलिन का बना हुआ ये एक ऑपरेटस है गूज क्रूसिबल, और ये मोर प्रेसिपिटेटेड सैंपल को सक्शन के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ जो है वो क्या कर लेता है, फ़िल्टर कर लेता है। इसमें सिर्फ एक फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं और इसको सक्शन फ्लास्क के ऊपर एडजस्ट किया जाता है। जब यहाँ से कंप्लीट सक्शन अप्लाई होगी तो फिल्ट्रेट यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, जबकि गूज क्रूसिबल के अंदर फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो है वो रेजिड्यू कलेक्ट हो जाएंगे, जो ज़्यादा प्रेसिपिटेट सैंपल होंगे। यहाँ पे एक बड़ी ख़ास बात ये है कि गूज क्रूसिबल में कुछ ऐसे सैंपल्स भी होते हैं जो इस मटेरियल में फ़िल्टर पेपर जो इसके अंदर एडजस्ट किया जाता है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे HCl है,
यानी एसिड्स हैं जो मोर कंसनट्रेटेड सैंपल्स हैं जैसे KMnO4 है, तो कुछ जो एसिड्स हैं वो उस फिल्टर पेपर जो गूज क्रूसिबल में इसकी बॉटम में इसमें जो एडजस्ट करते हैं उसको अफेक्ट कर सकते हैं। तो उससे बेहतर है, उससे अवॉइड करने के लिए, यानी रिएक्शन जो फ़िल्टर पेपर से उससे अवॉइड करने के लिए जो इस गूज क्रूसिबल में हम फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे, उस फिल्टर पेपर के नीचे एक एस्बेस्टास जो है ना वो लिया जाता है, एस्बेस्टास मैट होता है, उसको एडजस्ट करते हैं, वो फ़िल्टर पेपर को रिएक्शन से अवॉइड करता है। यानी एसिड जो होंगे वो इस पे फ़िल्टर पेपर जो गूज क्रूसिबल में यूज़ होता है उसके साथ रिएक्ट नहीं करते। तो ये एक टेक्निक गूज क्रूसिबल की स्पेशल है। जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन है, स्लो प्रोसेस है, उसको इस फिल्टर पेपर के ज़रिए किया जाता है, और जो मोर प्रेसिपिटेटेड सैंपल्स हैं उनको हम गूज क्रूसिबल के ज़रिए जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। और लास्ट में है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये एक ऐसा अपरेटस है कि जिसमें प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। जैसे हमने गूज क्रूसिबल है उसको एडजस्ट किया है, ये एक इसमें हमने फ़िल्टर पेपर जो है उसको प्लेस किया है, फिर इसको एक सक्शन पंप के ऊपर एडजस्ट किया है फ्लास्क के अंदर, और ये प्रोसेस जो है कंप्लीट करने के बाद जो है वो प्रेसिपिटेट्स को जो है वो इसमें से अलग किया है। लेकिन सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है ये एक ऐसा अपरेटस है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, इसके लिए कोई प्रिपरेशन जो है उसकी नीड नहीं होगी। सिंपली मिक्सचर को इसके अंदर से पास करते हैं, इसकी जो बॉटम है उसमें सील्ड किए होते हैं पोर्स, यानी डिस्क लगी होती है जिसमें पोर्स जो है वो मौजूद होते हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल जो है या पर्टिकुलर उसके जो पोर्स होंगे। तो सैंपल को उसमें से रन करते हैं सिंपली, और जो कंपोनेंट्स हैं उनको अलग किया जा सकता है। तो इसके लिए प्रिपरेशन रिक्वायर्ड नहीं होगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल जो है इट इज़ कन्वीनियंट, इट इज़ मच मोर बेटर than that of gauge crucible because no preparation is required. Different pores they are present into the bottom of the sintered glass in form of disc. तो उसमें से सैंपल जो है वो अपने कंपोनेंट्स में कम्प्लीटली अलग किया जा सकता है। लास्ट में एक इसमें टेक्निक ये भी है कि एक जो आम फिल्टर पेपर प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है ये स्लो प्रोसेस होता है, तो इसको थोड़ा सा इसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ करने के लिए, एनहांस करने के लिए इसमें जो फ़िल्टर पेपर यूज़ करते हैं उसको जो एक फ्लूटेड फ़ैन लाइक अरेंजमेंट जो है ना वो अरेंज किया जा सकता है, यानी उसको बोला जाता है फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कंपैरेटिवली रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ करता है, उसमें कुछ एलिवेशन डिप्रेशन प्रेजेंट होंगे, तो वो एरिया जो होगा जो फ़्लो होगा लिक्विड का उसमें से वो आसान होगा, तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हो सकता है। लेकिन ये ओवरऑल जो प्रोसेस है फ़िल्टर पेपर का वो एक स्लो प्रोसेस है, और इस वजह से एक प्रेसिपिटेटेड सैंपल को अगर सेपरेट करना हो तो हम अपरेटस जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये एक सेपरेशन टेक्निक है, फिल्ट्रेशन separation of insoluble particle from solution, and it may be from either normal filtration process or filtration is also done from gauge crucible or through sintered glass crucible. And if normal filtration process we use, then a simple filter paper may be used, or fluted filter paper it may also be used for the smooth for the process of filtration. It may increase the rate of filtration little bit, but filtration may also be done by using fluted filter paper. तो ये इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कंप्लीट था। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो क्रिस्टलाइजेशन है, वो इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो आप लोगों को बताया जाएगा।